प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। कानपुर में प्राइवेट ट्यूटर पर गंभीर आरोप, युवती का अपहरण कर किया रेप, पूरे शरीर में मारे ब्लेड, जान से मारने की कोशिश की। आसनसोल दक्षिण से तृणमूल प्रत्याशी रही साइनी घोष को ममता बनर्जी ने सौंपा महत्वपूर्ण जिम्मा, तृणमूल युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। অবশ্যই উইথ গ্রেট পাওয়ার কামস গ্রেট রেসপন্সিবিলিটি, সো চেষ্টা করব যাতে খুব ভালোভাবে নিজের দায়িত্বটা পালন করি। कृषि कानून के 1 साल होने पर संयुक्त किसान मोर्चा ने मनाया काला दिवस, जलाई कृषि बिल की प्रतियां। मारो नहीं, हो गया पूरा ब्लड आ रहा, बाहर छोड़ दो। लोगों के हाथों से पिटता शख्स एक प्राइवेट ट्यूटर है, लेकिन इसने कथित रूप से संगीन अपराध किया है, इसलिए लोगों का गुस्सा इस पर टूट पड़ा। दरअसल पुराना हाट इलाके के रहने वाले प्रसन्नजीत सेन गुप्ता पर एक युवती का अपहरण करने, उसका रेप करने और जान से मार देने की कोशिश करने का आरोप है। इन आरोपों के तहत शनिवार को पीड़ित युवती ने हीरापुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। यह युवती बंडपुर के बोस्टम बांध इलाके में रहती है। फिलहाल वो आसनसोल जिला अस्पताल में इलाजरत है। उसने अपने शिकायत पत्र में कहा कि प्रसन्नजीत ने उसे बंडपुर के SBI बैंक निकट से जोर जबरदस्ती और धमकी देकर अपनी बाइक में मैथन ले गया। वहां उसने उसका शारीरिक शोषण किया, मारपीट की और पूरे शरीर पर ब्लेड भी मार दिया और फिर उसके गले में ब्लेड डालकर जान से मारने की कोशिश भी की। इसके बाद प्रसन्नजीत ने उसे घायल अवस्था में उसके घर के पास लाकर फेंक दिया। लड़की की मां ने रोते हुए बताया कि प्रसन्नजीत ने उसके साथ कई बार रेप किया, लेकिन इस बार इंतहा हो गई तो उसकी बेटी ने घटना के बारे में बताया। प्रसन्नजीत ने पीड़िता की बहन को भी जान से मारने की धमकी दी है, जिससे वो भय में आकर कुछ नहीं बता रही थी। आगे तो ये के हम तो जानताम ना, तो कल सेदिन যখন খুব বরদাস্ত করতে পারে না তো আমাকে বলেছে যে আমাকে এমনি এমনি করে মেরেছে। তো বলে অতদিন যখন তোর কেসটা হয়েছে অতদিন থেকে তো প্রকাশ ইয়ে করছে, তো তুই আমাকে বলিস নাই কেন? বলছে মা আমি ভয়ে বলি নাই, যে বলে যে তোর বোনকে উঠাবো, মাকে উঠাবো আর তোর বাবাকে জেলে দিব, সেই ভয়ে ভয়ে বলি নাই। ওই জন্যই আমি চুপ করে থাকি, সব কিছুরে খালি ধমকি দেয়, ও খালি বোনকে তুলবো আর বোনকে তুলবো। আপনার মেয়ে ওনার কাছে কি করতে? ওর ধরিলে কোনো কাজ পড়লে ওকে ডাকতো। আসলে আমাদের ছোট থেকে চিনা পরিচয় ছিল, তো ওটা ভাবতে পারে না যে এরকম ধোকা করবে আমার সঙ্গে। তো তুলে নিয়ে যায়, এত মারিছে যে কোনো বলারই নেই। তো যে করেছে তার নাম প্রসেনজিৎ সেনগুপ্ত। তো এখন আপনারা কি চাইছেন? কি চাইছি? আমার মেয়েকে তো ইয়ে করলো শাস্তি। এখন তো থানার মধ্যে এসেছেন, থানা থেকে আপনাদের কি অভিযোগ নেওয়া হয়েছে? এবার তোমরা যা করবে সেটাই হবে। অভিযোগ নেওয়া হয়েছে কি থানা থেকে? কমপ্লেন নেওয়া হয়েছে কি না? এখান থেকে তো কোনো নিচ্ছেই না। কি বলছে? তো ওই তো ফিরান দিচ্ছে, কখন আসো তখন আসো। হ্যাঁ, এই বড় বাবু নাই তো মেজ বাবু নাই, খালি ওই করছে। তো আপনার কি মনে হচ্ছে যে থানা থেকে এই কেসটাতে দাবানো হচ্ছে? এবারে দাবাচ্ছে না কি করছে এবারে ওরাই জানতে পারছে। এবারে আমি তো আর কিছু জানছি না, যা করবার তো করলাম। এবারে ওরা বুঝছে না, একটা মেয়ে ছেলের কেস। बहरहाल घटना के संबंध में पीड़िता के परिवार ने हीरापुर थाने में शिकायत दर्ज करनी चाहिए। तो आरोप है कि पुलिस द्वारा सहयोग नहीं किया गया। ক্ষতবিক্ষত করে দেয় এবং তাকে রেপ করে। রেপ করার পরে তাকে তার বাড়ির সামনে এসে ফেলে দেয় এবং ফেলে দিয়ে তাকে বলেছে যে এই ব্যাপারে যদি পুলিশ কমিশনার বা পুলিশ বা কোনো কিছু করতে যাও তাহলে তোমার বোনকে তুলে নিয়ে যাব, তোমাকে তুলে নিয়ে যাব, দুজনকে মার্ডার করে সাইডে ফেলে দেবো। ঠিক আছে, আমরা এই বিষয়ে কমপ্লেন করি থানাতে কমপ্লেন করি, থানাতে যেটা লিখিত অভিযোগ। ঠিক আছে, আমরা কাল রাত থেকে থানা যাচ্ছি, কিন্তু ওনারা কোনো মতে আমাদের লিখিত অভিযোগটা নিচ্ছে না, শুধু বলছে এই ভুল আছে, লেখা এইভাবে হবে। হ্যাঁ, আমরা কাল থেকে ঘুরে যাচ্ছি, কিন্তু আমরা খুব পরিশানিত হয়ে আছি, যেহেতু একটা মেয়েটা হাসপাতালে আছে, আপনার বেডে, খুবই অসুস্থ, খুবই সিরিয়াস অবস্থাতে আছে। ঠিক আছে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত থানা আমাদের কাছে কোনো লিখিত অভিযোগ নেয়নি। ঠিক আছে, এখন যে আপনি বলবেন, এখন আমরা গিয়েছিলাম, এখন বললো যে দেখুন এখন মেজবাবু নেই, উনি বিকেলে আসবেন, বিকেলে আসার পর আপনারা আসুন। তো আপনারাই বলুন যে বারবার একটা মানুষকে এরকম ভাবে হ্যারাসমেন্ট করাটা কি ঠিক?
बाद में सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा पुलिस पर मामला दर्ज करने का दबाव बनाया गया। इसके बाद बाध्य होकर पुलिस ने प्रसन्नजीत सेन गुप्ता को हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। इधर लड़की के परिजनों ने पुलिस से गुहार लगाई है कि उनकी लड़की को जरूर न्याय मिलना चाहिए। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. विधानसभा चुनाव से पहले बंगला फिल्मों की अभिनेत्री सायनी घोष ने टीएमसी का हाथ थामा था। चुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें आसनसोल दक्षिण से पार्टी प्रत्याशी बनाया था। सायनी ने जमकर चुनाव प्रचार किया, लेकिन वह बीजेपी की प्रत्याशी अग्निमित्रा पॉल के हाथों हार गई। हालांकि सायनी चुनाव हार चुकी थी, लेकिन वह आसनसोल कई बार आई और पार्टी कार्यकर्ताओं से लेकर आम लोगों तक संपर्क बनाए रखा। अब इसका फल सायनी को मिला है। ममता बनर्जी ने 28 साल की सायनी को तृणमूल युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया है। शनिवार को पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया। सायनी के लिए युवा संगठन के अध्यक्ष का पद मिलना इस मायने में बड़ी बात है, क्योंकि उनके पहले पार्टी में नंबर 2 अभिषेक बनर्जी उस पद पर थे। अभिषेक तृणमूल युवा कांग्रेस के 2014 से ही अध्यक्ष के पद पर विराजमान थे, लेकिन अब अभिषेक को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। अभिषेक के जाने के बाद युवा संगठन के अध्यक्ष पद खाली हुआ था, जिस पर सायनी घोष को लाया गया है। सायनी घोष ने पार्टी के युवा संगठन का अध्यक्ष पद मिलने पर खुशी जाहिर की है, लेकिन साथ ही कहा कि वह जिम्मेदारी को पूरी शिद्दत से निभाएंगी और मुख्यमंत्री ने जो उन पर विश्वास जताया है वह उस विश्वास पर खरी उतरने की कोशिश करेंगी। অনেক অনেক বড় দায়িত্ব, গুরু দায়িত্ব এবং দলের কাছে আমি খুবই কৃতজ্ঞ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আমাদের অনারেবল সিএম এবং অবশ্যই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং যারা যারা ভেবেছেন যে আমার এইটুকু যোগ্যতা আছে যে আমি এত বড় একটা দায়িত্ব নিতে পারি, এবং অবশ্যই উইথ গ্রেট পাওয়ার কামস গ্রেট রেসপন্সিবিলিটি। সো চেষ্টা করব যাতে খুব ভালোভাবে নিজের দায়িত্বটা পালন করি। সবসময় আমরা জানি যে জার্নি অফ 1000 মাইল স্টার্টস উইথ আ সিঙ্গল স্টেপ, একটা একটা করেই হয়। এবং আবার বলছি যে যখন প্রার্থী হয়েছিলাম সেদিনও জানতাম না যে প্রার্থী হওয়ার মতো আমার যোগ্যতা আছে কিনা, সেটা দল আদৌ বুঝতে পারবে বা চাইবে আমাকে কোনো না কোনোভাবে। সেদিনও দেয়ার ওয়াজ এ সারপ্রাইজ, টুডে অলসো দেয়ার ইজ এ সারপ্রাইজ। এবং যত দিন যাচ্ছে বুঝতে পারছি যে একটা আলাদা এক্সপেকটেশন রয়েছে, সেটা দলের আমার প্রতি রয়েছে, যেটা নেতৃত্বের আমার প্রতি রয়েছে এবং মানুষের অবশ্যই যারা আমার স্ট্রেংথ, যারা আগে আমার কাছে দর্শক ছিলেন, এখন তারা প্রত্যেককে আমি খুব অন্যভাবে পারসিভ করি। তো শুরু হয়েছে এবং আমার মনে হয় যেটা হবে খুব ভালো হবে। সামনে অনেক বড় বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে। नए एक्सक्लूसिव ड्रेसों के साथ फुल्ली सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्री बालाजी फैशन आपका स्वागत करता है। वाजिब दरों पर फैंसी साड़ी सहित अन्य ड्रेसों की खरीदारी करें। आज ही आए बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष इंस्टीट्यूट, आसनसोल। नमस्कार, हम लोग कोविड-19 के लेके फुल सैनिटाइज करके स्टोर फिर से ओपन किए हैं। आप लोग हमारे यहाँ आइए, साड़ी, सूट्स, लहंगा की लुत्फ उठाइए और हमारे ये सारे वेडिंग कलेक्शन भी अवेलेबल है। आसनसोल शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 2021 के लिए प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। किसी भी घर की शान होती है उस घर में रखे फर्नीचर्स, और आपके सपनों के महल को आकर्षक फर्नीचर्स के साथ सजाना हो तो आप सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोदली। जी हाँ, गोदली समीरन राय रोड स्थित मॉडर्न फर्नीचर आपको आकर्षक फर्नीचर के रेंज वाजिब दरों पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड फर्नीचर, सागवान वुडन आइटम जैसे बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, वार्डरोब के अलावा स्टील अलमीरा, प्लास्टिक चेयर, सोफा के फुल रेंज सहित कई तरह के फर्नीचर बाजार से कम दरों पर इजी फाइनेंस के साथ पाए जाते हैं। तो घर को आकर्षक बनाना हो या शादी के लिए फर्नीचर लेना हो, सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर, गोदली समीरन राय रोड, गुरुद्वारा के करीब, आसनसोल। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 8927603597। बचाओ कॉर्पोरेट हटाओ।
सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून के 1 साल पूरे होने के मौके पर शनिवार को एक बार फिर संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा प्रदर्शन किया गया। आसनसोल के भगत सिंह मोड़ पर बनपुर गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की तरफ से यह प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर कृषि कानून के बिल की प्रतियों को भी जलाया गया। कृषि कानून को केंद्र द्वारा लाए जाने के 1 वर्ष पूर्ण होने पर इन दिन को संपूर्ण क्रांति दिवस और काला दिवस के रूप में भी मनाया गया। पिछले साल भारत सरकार की तरफ से कृषि के 3 काले कानून पास किए गए थे। आज उसका पूरा 1 साल हो गया है, जो अभी तक भारत सरकार के पास बहुत सारी मांगे इस कृषि के तीनों काले कानून को रद्द करवाने के लिए दिल्ली पे और देश की जगह जगह पर धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन अभी तक भारत सरकार के कानों के नीचे जू नहीं रही है। इसलिए आज हम संपूर्ण क्रांति दिवस के तौर पे आज इस दिन को हम काला दिवस फिर से मना रहे हैं कि आज इस काले कानून का पूरा 1 साल पूरा हो गया है। इसलिए आज हम पूरे आसनसोल डिवीज़न के लोगों का सहयोग लेकर फिर से भारत सरकार के पास मांग कर रहे हैं। हम हमारे आसनसोल शहर भगत सिंह मोड़ चौक पे ये जो 3 काले कानून पास किए गए थे, इसे रद्द किया जाए। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आसनसोल नगर निगम ने पौधारोपण को बढ़ावा दिया है। नगर निगम द्वारा लोगों में 5000 पौधे बांटे गए हैं। शनिवार को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर नगर निगम परिसर में एक कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम नगर निगम के 106 वार्डों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था और उनके हाथों में एक एक पौधे सौंपे गए। इस मौके पर नगर निगम के प्रशासकीय बोर्ड के सदस्य अभिजीत घटक, दिवेंदु भगत, पूर्ण शशि राय समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। अभिजीत घटक ने इस मौके पर कहा कि आज तो हम चक्रवाती तूफान देख रहे हैं, उसका एक कारण पेड़ पौधे का कम होना भी है, इसलिए अभी पेड़ पौधे लगाने की जरूरत है। महामारी समय যেভাবে পরিবেশকে নিয়ে আমরা চর্চা করছি, যেভাবে বিগত কয়েক বছরের মধ্যে আমরা 2-3টে ঘূর্ণিঝড়কে দেখতে পেলাম, যেটা আমাদের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যকে প্রায় ধূলিসাৎ করে দিয়ে চলে গেছে, যেখানে প্রচুর মানুষ আজকে ঘর ছাড়া, তাদের বাসস্থান আজকে নেই এই বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড়ের কারণে। তাই আজকে পরিবেশকে যে ব্যালেন্স, যে ইকোসিস্টেমের যে ব্যালেন্স, সেটা মেনটেন করার জন্য আজকে কিন্তু আমাদের সবথেকে যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে গাছ লাগাতে হবে। কারণ আমরা জানি যে এই গাছকে কেটে ফেলার কারণেই আজকে যে পরিবেশের যে ব্যালেন্সটা, সেই ব্যালেন্সটা নষ্ট হয়ে গেছে। आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स और मरवाड़ी युवा मंच आसनसोल सिटी शाखा ने शनिवार को एक साथ मिलकर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। इस मौके पर आसनसोल के उषाग्राम स्थित गर्ल्स स्कूल में पौधारोपण किया गया। आसनसोल चेंबर के अध्यक्ष नरेश अग्रवाल सहित शंभुनाथ झा और मंच की तरफ से सुदीप अग्रवाल, अभिषेक केडिया, संदीप दारुका, अंकित अग्रवाल समेत अन्य सदस्यों ने पौधारोपण किया। चेंबर के अध्यक्ष नरेश अग्रवाल ने स्कूल की प्रिंसिपल को उन्हें यह कार्यक्रम करने का अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद दिया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आसनसोल उषाग्राम गर्ल्स स्कूल में आज वृक्ष रोपण किया गया। आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं मारवाड़ी युवा मंच आसनसोल शाखा द्वारा आज ये प्रोग्राम आयोजित किया गया। इसके लिए मैं स्कूल को धन्यवाद देता हूं एवं स्कूल में इस कार्यक्रम करने के लिए हम लोगों को जो अवसर दिया, उनके लिए सुशीला मैडम को हार्दिक अभिनंदन। मैं मुरारीलाल अग्रवाल, बागपुर चैम्बर कॉमर्स के प्रेसिडेंट। हमारी समस्या 60 साल से चलती है स्कूल से, और हम लोग बोलते बोलते यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब 2014 में एग्रीमेंट हुआ था, उसको बढ़ाते बढ़ाते मेरे और दुकानदार भाई बोलेंगे, मैं 2 शब्द बोलता हूँ कि कोरोना महामारी में हर स्टेट सेंटर सब जगह छूट दे के रखी है और हम लोग पर बोझा डाली जा रही है इसको। इसलिए हम उसी के लिए आज ये हमारी सभा है, जो कि हम लोग को इसका डिबेट करें।